मुझे पता नहीं था पढ़ते कैसे, पढ़ते कहाँ से और कितना पढ़ते हैं। एंड वही टाइम पे आई स्टार्टेड यूजिंग प्रेप लैडर। सो आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोना फिनिश ऑल द वीडियो लेक्चर्स। माय फेवरेट टीचर डॉक्टर प्रीति शर्मा, ये बुक मैं सबसे पहले पढ़ने वाला हूँ। सो लेट्स डू दिस। When I joined MBBS, I had no idea कि MBBS में इतनी पढ़ाई होगी, especially first year में। फर्स्ट ईयर में आई वॉज क्लूलेस अबाउट अकेडमिक्स। मुझे पता नहीं था पढ़ते कैसे, पढ़ते कहाँ से और कितना पढ़ते हैं। एंड आई डिड नॉट स्टडी दैट मच, आई डिड नॉट इवन अटेंड लेक्चर्स। एंड a primary cause for all of this was that I was just not interested in my studies. I would just read my textbooks like story books and जो भी book हाथ में आता था बस उसको पढ़ने लग जाता था without actually understanding the concept. फिर भी कैसे तो करके मैंने फर्स्ट ईयर निकाल लिया और फर्स्ट ईयर में पास हो गया। उसके बाद मैं आया सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में मैंने अपने सीनियर से बात किया as to how am I supposed to study. एंड मैंने नया iPad लिया हुआ था in the second half of my second year. So तभी I started making a little bit of notes, but मुझे पता नहीं था कि नोट्स कैसे बनाते हैं एंड वो नोट्स कहाँ काम आने वाले हैं। जस्ट iPad पे लिखने को एप्पल पेंसिल से मजा आता है। इफ यू आर मेकिंग नोट्स एंड तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो, सो इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। एंड आई वुड से कि सेकेंड ईयर वाज स्टिल बेटर देन फर्स्ट ईयर बिकॉज माय concepts from pharmacology and pathology के subjects were really strong, but microbiology held me down because मुझे learn करना नहीं आता, मुझे रटना अच्छे से नहीं आता। And then came third year से your clinical subjects start. Clinical subjects में whatever you learn in your first and second year, you are supposed to apply it, and subjects like ENT, ophthalm and PSMI. And वही time पे I started using prep ladder. And you know the best part about prep ladder was the teachers who actually made me understand the subject. उन्होंने मेरा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप किया एंड दे वर द वंस टू टेल अस एंड दीज टॉपिक्स आर मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम एन एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो काफी अच्छा, काफी स्मूथ गया, बट स्टिल वो पढ़ाई का कंसिस्टेंसी, वो जोश नहीं आया था। बट सेकेंड हाफ में आई वाज स्टार्टिंग टू रियलाइज हाउ आई एम सपोज्ड टू स्टडी. So one important thing that I really lacked in third year and I realized after giving my exams was that I was not able to revise properly, because how much ever you study, if you're not able to revise it in the period of your exam, or if you're not able to recollect it during exams, that knowledge is of no use. And एक और thing that I realized about myself is कि easy topics को मैं ज़्यादा पढ़ रहा था and जो difficult topics है मैं उनको पढ़ने के लिए या उनको लर्न करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था। बट इन दी एंड डिफिकल्ट टॉपिक्स को ही मुझे ज़्यादा टाइम देना है। एंड नाउ आई एम इन फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर इज द फाइनल ईयर ऑफ MBBS। फोर्थ ईयर की खुद की पढ़ाई ज़्यादा होती है एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, स्पेशली इन थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल्स। So I have decided that I'm gonna finish all the video lectures. And जब तुम video lectures देखने बैठते हो, I watch video lectures in a picture-in-picture format, जहाँ पे notes background में रहते हैं and video right side में चलता रहता है। And whenever I watch video lectures, I always wonder कि I should have the notes, I should have a physical copy of the notes. And a week ago, I started doing pathology because pathology and medicine बहुत ही co-related subjects हैं। And वो पढ़ते पढ़ते मैं सोच रहा था कि काश मेरे पास notes होते, मैं अपने notes में underline कर पाता, मैं notes में highlight कर पाता, notes में annotate कर पाता। And उसके next day पे I got a mail from PrepLadder saying that your notes have been dispatched. I was shocked and I was so excited. अब तक it's been 4 days and every single day I've been tracking this package and seeing कि किधर तक आया है, क्या आया है। And आज जैसे ही मैं college से आया, I decided to unbox it in front of you guys. It's my first unboxing on YouTube, so don't be hard on me guys. I have a rough idea as to how I'm gonna unbox this, so let's do this. This is the first set of notes. I don't know what this is. And these are the last set of notes. न्यू बुक्स की खुशबू ही अलग होती है एंड इट रिमाइंड्स अस ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। वो न्यू नोटबुक्स पे कवर डालना, उनको स्कूल में लेके जाना एंड फ्रेश पेजेस का स्मेल, वो बहुत ही लाइक नॉस्टैल्जिक फील करा रहा है मुझे। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस। सो दीज आर अ फ्यू बुकमार्क्स इन हियर: सैक्रिफाइस,
discipline, ambition, persistence. These are all the stickers if anyone wants to use. I don't know if I'll use them. मैंने आज तक कभी डेकोरेटिव या अट्रैक्टिव नोट्स बनाए नहीं हैं, सो स्टिकर्स यूज करूंगा या नहीं आई डोंट नो. सो सबसे पहले हम अनबॉक्स करेंगे ये. This is basically the cover theme of Prep Ladder this year. Biochemistry, medicine. PSM Volume 1. Integrated Essentials, Radiology. इसमें देखते हैं इमेज क्वालिटी कैसा है. I hope you guys can see it. My favorite teacher, Dr. प्रीति शर्मा. ये बुक मैं सबसे पहले पढ़ने वाला हूँ. The last set. ASMR हो रहा है क्या? I don't know कैसे करते हैं. काफी लोगों ने बोला था कि इसका ASMR करना. I don't know उसको कैसे करते हैं. Mukbang, ASMR. We are finally done with the unboxing, and now let me show you guys how I'm actually gonna use this. So the book that I'm most excited to check out is Integrated Essentials. So Integrated Essentials में let's take anemia for example. Anemia का basic introduction part starting में दिया हुआ है. उसके बाद epidemiology दिया हुआ है which is a part of PSM. उसके बाद symptomatology, signs and symptoms जो medicine का part है, even OBGYN वगैरह में हम पढ़ते हैं. एंड उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का कंप्लीट एस्पेक्ट कवर्ड है. ट्रीटमेंट विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेडिसिन. एंड यहाँ पे जो लैब डायग्नोसिस दिया हुआ है इट इज अ पार्ट ऑफ पैथोलॉजी. सो तुम्हारा पूरा पैथोलॉजी से लेके मेडिसिन एक ही बुक में इतने कंसाइज वे में कंप्लीट हो रहा है. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन लर्निंग अबाउट. सो मैंने जस्टिन संग का एक वीडियो देखा एंड इन दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट एनकोडिंग एंड हाउ योर ब्रेन डज नॉट लर्न इंफॉर्मेशन लीनियरली हाउ इट इज गिवन इन टेक्स्ट बुक्स बट इट इंटीग्रेट्स वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू द अदर. जैसे हम माइंड मैप्स या कुछ बनाते हैं जैसे फ्लो चार्ट्स फॉर एग्जाम्पल. Our brain always connects dots and it always connects pieces of information together. So integrated way में पढ़ना ही बेहतर होगा. And this is why Integrated Essentials is gonna be hands down the most important book for my PG preparation. Apart from that, let me just show you my favorite subject के notes, that is patho. So patho में I've opened cardiac pathology. So basically उसमें key points, highlights, bullet forms and tables वगैरह बहुत अच्छे दिए हुए हैं. सेकेंडली उन्होंने डायग्राम्स बहुत अच्छे कलर्स में एंड बहुत सारे डायग्राम्स इंक्लूड किए. उसके बाद क्रॉसवर्ड पजल्स है. This is a very new and interesting thing. So the next best part about these notes is PYQs. So PYQs उन्होंने पीछे दिए हुए हैं and PYQs से हमें PYTs पता चलते हैं. PYTs मतलब previous year topics. So वो topics हमको अच्छे से पढ़ने हैं and this is how I'm gonna distill down and focus on the most high yield information and the high yield topics. So for those who've been following my journey religiously, I want to tell you guys my plan and what I have learned so far. तो YouTube पे वीडियोस देख के सीनियर्स से बात करके एंड टीचर्स की चीज़ें देख के मुझे ये समझ में आया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो हैंड रिटन नोट्स बनाना है या प्रिंटेड नोट्स यूज़ करना है. मेरा प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा प्रिंटेड नोट्स के टूवर्ड्स गया बिकॉज आई यूजुअली डोंट ट्रस्ट माई ओन हैंड राइटिंग एंड आई ऑलवेज फील जब भी मैं हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ कि आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग एंड मुझे फोमो वाली फीलिंग आती है. एंड यू शुड नॉट हैव फोमो स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर पीजी प्रिपरेशन एंड MBBS पढ़ाई. आई नो दिस बट ऐसे मुझे यूजुअली होता है. सो
नाउ लेट मी गेट टू द गेम प्लान नाउ। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मुझे फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए इवन लेस टाइम मिलेगा। आई हैड ओरिजिनली थॉट कि मैं फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स अपने इंटर्नशिप में पढ़ूंगा, बट अपने सीनियर्स को देख के एंड उनकी हैवी इंटर्नशिप देख के मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना टाइम मिलेगा इन माई इंटर्नशिप एज कम्पेयर टू फाइनल ईयर। तो द गोल इज टू फिनिश एवरी लॉन्ग सब्जेक्ट इन 8 days एंड एवरी शॉर्ट सब्जेक्ट इन 2 days। उस हिसाब से मेरा फर्स्ट रीड वेरी स्मूथली होगा, whether I'm making my own handwritten notes or whether I'm referring to these notes. I need to make sure that I'm able to complete a long subject in 8 days. So now that I've decided to take an integrated approach towards things, I have made this notebook. इसमें मेरा पूरा index है। I've written down each and every subject. So vasculitis करके एक topic है जो pathology and medicine में पढ़ाया गया है। Basically अगर pathology के part के नीचे तुम management लिखोगे तो तुम्हारा पूरा vasculitis, pathology plus medicine complete हो जाएगा। So इस इंडेक्स में मैंने पैथोलॉजी एंड मेडिसिन वाले सेक्शन के नीचे लिख लिया वैस्कुलाइटिस, डू फ्रॉम गुड नोट्स आईपैड, एंड दीज गुड नोट्स आई माइट प्रिंट इन द फ्यूचर बिकॉज अगर मैं आईपैड खोलने जाता हूँ इतने डिस्ट्रैक्शंस एंड कितनी पढ़ाई होती है एंड कितना टाइम पास होता है मुझे ही पता है। सो आई कैन नॉट लेट माई सेल्फ गेट डिस्ट्रैक्टेड। फ्यू डेज पहले वैस्कुलाइटिस करके एक टॉपिक पढ़ रहा था जो पैथो और मेडिसिन दोनों में सिखाते हैं। सो आई थॉट कि क्यों ना उन दोनों चीजों को इंटीग्रेट करके एक ही नोट्स बनाए। तो मैंने अपने आईपैड पे वैस्कुलाइटिस के कंबाइंड पैथोलॉजी एंड मेडिसिन के नोट्स बनाए एंड ये नोटबुक में मैंने इंडेक्स बनाया जहाँ पे मैंने पैथोलॉजी एंड मेडिसिन वाले सेक्शन के नीचे लिखा कि वैस्कुलाइटिस डन इन गुड नोट। नाउ लेट्स कम डाउन टू फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स। वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड इज कि हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप बहुत हैवी रहता है। सो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मुझे लेस टाइम मिलेगा एंड अगर मुझे 8 days में अपना फर्स्ट रीड कंप्लीट करना है ऑफ एनी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सब्जेक्ट, आई नीड टू हैव माई ओन सेट ऑफ नोट्स रेडी। ओन सेट ऑफ नोट्स मतलब हैंड रिटन नोट्स ऐसा जरूरी नहीं है, बट द नोट्स दैट आई हैव ऑलरेडी रेड एंड द नोट्स दैट आई थिंक दैट आई विल बी एबल टू रिवाइज इफ आई डेडिकेट 8 days to that particular subject. So for first and second year subjects, I'm annotating my first aid. So basically मैं वीडियो ऑन रखता हूँ एंड फर्स्ट एड खोलता हूँ। जो भी पॉइंट फर्स्ट एड में नहीं दिया होता है वो अपने वीडियो से वहाँ पे नीचे ऐड कर लेता हूँ एंड जो टॉपिक कंप्लीटली फर्स्ट एड में मिसिंग है मैं ऐसे बुकमार्क्स लगा के अपने फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के नोट्स में डालने वाला। सो या दिस इज माई प्लान सो फार। जैसे जैसे मैं पढ़ते जाऊंगा, जैसे जैसे आई कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, जैसे जैसे आई एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज, आई ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर देम एंड मेक things easier throughout the process. So if you've made it this far in the video, please subscribe to this channel. I'm really trying to get to 10K. I'll see you guys in the next one. Peace.